Today we are going to talk about trees, right? You already had session about trees, right? What does the tree mean? Or I can say tree data structure, right? Tree data structure. So what do we have in trees? Right? So tree, like up to now before the trees, right? Before the trees, all you have seen are linear data structure, right? Before the trees, like you have studied multiple data structure before the trees, right? So all the data structures that you have studied about before the trees were linear data structure. Like you have studied arrays, and you have studied linked list, and you have studied stack and queues, stack and queues, right? So all these data structures that you have studied, all these were linear data structure. Linear. Continuous which have branches and nodes. Starts with single node and then expands. Right? Good. Instead of container, you will say a data structure, right? Container is not a perfect word to define it. You can even say it, but the perfect word would be data structure. Because tree is what? Tree is a data structure, right? All of these are data structure. Like array is a data structure, linked list is a data structure, stack, queue, all of these are data structures. And up to now, arrays, linked list, stack, queue, all of these were linear data structures. Linear data structure. What do I mean by when I say linear data structure? Like by linear data structure, I mean that when you look at their particular definition, right? Particular their representation and their structure. So that's how my array looks. Right? All the elements, I know that if I have element 1 here, so the next element will be coming just after 1. Right? And the next element after 2 will be coming just after 2. Right? And same we have the linked list. Right? So we have elements in a single order. Right? We have elements in a single order. Right? If I have element here, either I'll be having element after this or before this one. Right? There's no other place. But tree is separate from them. Tree is little different. So in tree is a non-linear data structure. Tree is non-linear, right? Tree is non-linear. And in the tree, what do we have? In the tree, we have a root node, right? We have like the smallest, the building block of a tree, right? Just like the linked list we have gone through. In the linked list, the smallest structure, the building block of the linked list was node, right? And the similar thing we have with trees. The building block of a tree is the node, right? And with this node, we have multiple other nodes are connected, right? And a tree is we call it is a hierarchical data structure. It is a hierarchical data structure. Hierarchical data structure. ठीक तो hierarchical का मतलब क्या है? Like जब हम hierarchical की बात करते हैं, right? Hierarchical you all know कि hierarchy, right? Hierarchy like it is like some institutional hierarchy. Right? It means like तुम्हारा like we have an employee के ऊपर team lead है और team lead के ऊपर manager है, manager के ऊपर उसका senior manager है, then we will have CEO and founder, right? And similarly, you can have hierarchy in your family, right? We have children, above that we have parents, then we have grandparents, right? So tree में भी similar hierarchy follow होती है, right? So tree, if we talk about tree, right? And when we talk about tree, जब हम tree की बात करते हैं, तो generally हम बात करते हैं binary trees की. Generally हम बात करते हैं binary trees की, right? In we can have multiple types of trees, but whenever जब भी मैं कहूँ trees in general, right? Trees in general, I'm referring to, मैं refer कर रहा हूँ to binary trees.
कि 2 ही चिल्ड्रन होंगे, कि 2 से ज्यादा चिल्ड्रन नहीं हो सकते, राइट? सो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर वी कॉल्ड अ ट्री अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। हमने ट्री को हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर बोला। सो बाय हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर मैं ये कहना चाहूंगा कि मींस ये है लाइक फर्स्ट नोड होती है हमारी रूट नोड, राइट? एंड रूट नोड के 2 चाइल्ड्स हैं, राइट? वी कॉल इट, ये हो गया लेफ्ट चाइल्ड एंड ये हो गया राइट चाइल्ड। एंड सिमिलरली इसके भी सब चाइल्ड्स होंगे, राइट? इसके भी और चाइल्ड्स होंगे एंड इसके भी और चाइल्ड्स होंगे एंड इसके भी और चाइल्ड्स होंगे, इसके भी और चाइल्ड्स हो सकते हैं, राइट? बट बाइनरी ट्री की अगर हम बात करें ना तो 2 से ज्यादा चिल्ड्रन हो ही नहीं सकते, राइट? तभी वो बाइनरी ट्री, अगर 2 से ज्यादा चिल्ड्रन हो जाते हैं तो इट इज नॉट अ बाइनरी ट्री, राइट? एंड बाइनरी ट्री में भी वी हैव काफी वेरिएशंस आ जाती है उसमें भी, लाइक वी हैव फुल ट्री, वी हैव कंप्लीट ट्री, वी हैव परफेक्ट बाइनरी ट्री, राइट? एंड वी हैव स्क्यू ट्री, राइट? मल्टीपल चीजें आ जाती है उसमें, सो वी विल नॉट गो दैट मच इन डेप्थ अबाउट दैट, राइट? बिकॉज दैट इज नॉट that much required. Trees have 2 connected children nodes at the left and right. Yes, that's about binary tree. So the top node is known as root and the lowest node, the bottom nodes, we call it leaf nodes. We call it leaf nodes, right? Leaf node, leaves, right? And अगर तुम ध्यान दो, right? Fun fact, like why we call it tree? Why we call it tree, or like why are we calling it? Or are we calling them by these names? कि इसको हमने root बोल दिया, इसको हमने leaf बोल दिया, तो इसको हम ऐसे क्यों बोलते हैं? So जब भी अगर मैं एक real tree की बात करूँ, right? If I talk about a real tree, so मेरा जो real tree start होता है, real tree कहाँ से start होता है? From where does the tree start growing? Tree कहाँ से grow करना start करता है? Can someone tell me? Tree starts from root, right? So tree का starting point हो गया root, ठीक है? Tree always starts from root, ठीक है? And tree में like tree human body की तरह नहीं है, tree में कहीं से कुछ भी निकल जाता है, right? एक ब्रांच है, ब्रांच से एक और ब्रांच निकल जाएगी, ब्रांच में कहीं पे फ्लावर आ जाएगा, कहीं पे कुछ आ जाएगा। So but I can say कि tree का end point क्या होता है, जिसके बाद कुछ और नहीं आता। After leaves, we do not have anything in our tree, right? We do not have anything in our tree. So that's it. I won't go in depth with how the tree is looking. So the same funda is followed here, right? So we have top पे root है, bottom में leaves है, right? And एक node के जो following nodes होती हैं, right? The nodes that are coming from my current node, they are known as the child nodes, right? ये हो गए child, और अगर ये child है तो ये वाली node हो गई इनकी parent node, right? Parent node, and ये parent है तो ये वाली node, या फिर if I would say कि अगर इन चाइल्ड्स की हम बात करें, इन 2 चिल्ड्रन की अगर हम बात करें, राइट? तो उनके लिए ये वाली नोड क्या होगी? You would say कि great great grandparent, say great grandparent, something like that. But we call it ancestor, right? So parent या parent से above जो भी है, we call them ancestor nodes, right? We call them ancestor nodes. Okay. और अगर एक parent की 2 चाइल्ड्स हैं, right? So what do we call these childs? इन चाइल्ड को हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड का आपस में क्या रिलेशन होगा? दो डिफरेंट चिल्ड्रन का आपस में क्या रिलेशन होगा, राइट? वी कॉल देम सिबलिंग्स, राइट? सिबलिंग्स, राइट? दे आर लाइक चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट। चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट तो उन्हें भाई बहन भी क्या बोलते हो? ब्रदर एंड सिस्टर आर नोन एज सिबलिंग, राइट? सो दैट वाज अबाउट द नेमिंग ऑफ द ट्री। एंड द ट्री, अगर अभी तक तुमने जो भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़े हैं,
अगर उनमें से मैं ट्री को किसी के साथ कनेक्ट करूं, राइट, ट्री को मैं किसी के साथ कंपेयर करूं, तो ट्री इज थोड़ा बहुत लाइक योर लिंक लिस्ट, पूरा नहीं, थोड़ा थोड़ा, राइट। बाय लिंक लिस्ट जैसा क्यों? बिकॉज लिंक लिस्ट में वी वर प्लेइंग विद पॉइंटर्स, राइट। लिंक लिस्ट में वी वर लाइक व्हेन आई आस्क द children question, right, when I asked the sibling question, like someone said cousins, right, someone responded cousins. So no, we are talking about the children of the same parent, right? Tree में कोई cousins नहीं होते, there are only siblings, parent and sisters, right? There are no cousins, right? तो वो cousins नहीं, sibling हो गए, same if two nodes have same parent, दो nodes का parent अगर same है तो we'll call them sibling, not cousins, okay? तो यस, आई सेड दैट, मैं कह रहा था कि अगर ट्री के अगर हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में बात करना, सबसे नियरेस्ट है उसके लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट इज द नियरेस्ट वन। सबसे पास कैसे है लिंक लिस्ट? बिकॉज लिंक लिस्ट में जब हम क्रिएट कर रहे थे तो हम पॉइंटर्स के साथ किए रहे थे, राइट। नेक्स्ट पॉइंटर को उठा के वहां रख दिया, उसका नेक्स्ट पॉइंटर वहां रख दिया टू चेंज थिंग्स, राइट। एंड द सेम थिंग वी डू इन द ट्री, राइट। ट्री में क्या चीज चेंज हो जाती है, लाइक एलएल में हमारे पास क्या था, लिंक लिस्ट में हमारे पास था वी हैड अ नोड, उस नोड में हमारे पास एक डेटा है और एक नेक्स्ट पॉइंटर है, राइट। बट ट्री नोड में क्या है हमारे पास, आई कैन से दैट लिंक लिस्ट नोड। ट्री नोड में हमारे पास क्या है, ट्री नोड में हमारे पास दो पॉइंटर्स आ जाते हैं, राइट। ट्री नोड से हमारे पास दो पॉइंटर आ जाते हैं, एक हो गया डेटा, फिर एक पॉइंटर हो जाता है लेफ्ट पॉइंटर और एक पॉइंटर हो जाता है राइट पॉइंटर, राइट। एंड दे both points at some node, right? राइट पॉइंटर भी किसी नोड को पॉइंट करेगा, so similarly उस नोड का भी कुछ डेटा होगा, उसका भी लेफ्ट और राइट पॉइंटर होगा, राइट। I guess we all know these things beforehand, right? I just wanted to give you an intro. I wanted to introduce you again to trees, right? So do you guys have anything, किसी को कोई in particular doubt है about trees? Or should I ask some questions too? So my first question is कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, right? We have a binary tree. Let's make a tree. 1 2 1 2 1 2 1 2 and 1 2, right? हमारा ट्री बनके तैयार है, right? So if I would say that कि and it is a, I can, मैं कह रहा हूँ कि perfect binary tree है, right? Perfect binary tree वो होता है जिसमें सारे levels completely filled हो, right? सारे levels completely filled है तो वो perfect binary tree है। तो अगर इसमें मैं कहूँ नंबर ऑफ नोड्स है इसमें n, तो इसकी हाइट क्या होगी? क्या कोई मुझे इसकी हाइट बता सकता है? ट्री की हाइट होती है लाइक कितने लेवल्स हैं उसमें, राइट? 1 2 3 4, तो इसकी हाइट होगी 4, राइट। एंड लॉग n बेस 2, राइट, बेस 2। व्हाई इज दैट? बिकॉज राइट, अगर आई कैन से दैट कि what I was trying to say, yes. So at each stage, the number of nodes are getting divided by 2, right? 1 2 3, right? So number of nodes is getting divided by 2. So the height will be log n, right? And those who said n, it is wrong, right? Okay. So now if you have, अगर मैं कहता हूँ कि मैंने तुम्हें राइट, फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हें ट्री की हाइट दे दी है, राइट, ट्री की हाइट दे दी है कि हाइट ऑफ द ट्री इज के, राइट, कि ट्री की हाइट है के यूनिट्स। नाउ मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे बता दो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स क्या होंगे ट्री, मैक्स नोड्स।
So I'm getting answers, right? So the mostly students are saying 2 raised to the power k, right? 2 raised to the power k. Or I can write it like this, 2 की power k, right? तो 2 की power k कैसे? And why 2 की power k? So let's see. अगर मेरे पास इसकी हाइट 2 है, right? उसकी हाइट 2 है, तो दो नहीं लेफ्ट से लेते हैं, उसकी हाइट 3 है, ट्री की हाइट 3 है, राइट? सो आई कैन से दैट कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इनिशियली उसकी हाइट, सो 2 की पावर 3 अगर मैं कंसिडर करूँ, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट? 2 इंटू 2 इंटू 2. सो और हर बार क्या हो रहा है एक ट्री में, हर बार नंबर ऑफ नोड्स मल्टीप्लाइड बाय 2, राइट? और मैंने क्या पूछा? मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स तभी होंगी जब हर एक पेरेंट के 2 चिल्ड्रन हो, राइट? क्योंकि अगर किसी पेरेंट का एक चिल्ड्रन है तो हम एक पॉसिबल नोड को लूज कर रहे हैं, राइट? तो मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स नहीं आएंगी. तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि हर एक स्टेप में नंबर ऑफ नोड्स 2 से मल्टीप्लाई हो गई, राइट? यहाँ पे 1 थी, 1 से 2 हो गई, और 2 से 4 हो गई, राइट? 4 से 8 हो गई, and 8 से the nodes will be 16 in this level, right? Here you can see 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 से हर एक नोड के दो चिल्ड्रन आएंगे, so it will become 16, right? So as नोड बार 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, राइट? सो अगर मैं कह रहा हूं इसकी हाइट 3 है, 1 2 3, राइट? सो अगर इसकी हाइट 3 है तो आई कैन से दैट 2, राइट, into 2 into 2. 2 into 2 into 2 will be its total number of nodes, right? Total number of nodes 2 into 2 होनी चाहिए, because हर बार डबल हुआ है. But 2 into 2 into 2 करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? My answer will be 8, right? But अगर हम देखें तो number of nodes आएंगे only 7. Number of nodes only 7. Was 1 2 3 4 5 6 7. ऐसा क्यों? Because ऊपर हमारे पास एक ही नोड है, right? Earlier initially we have only a single node, right? तो इस single node की वजह से we have to subtract 1. So it will be, in reality it will be 2 की power k minus 1, which gives me 7, right? And 2 की power क्यों लिया है? Because maximum number of nodes की अगर हम बात कर रहे हैं तो हर बार number of nodes multiply होंगी, right? That's how we will get maximum number of nodes. ठीक है guys, clear है सबको? Someone was asking to explain height again. तो I guess height का concept भी clear हो गया होगा इसमें दोबारा. Okay. पहले हमारे पास path की definition है. A path in a binary tree is a sequence of nodes, right? Where each pair of adjacent nodes in the sequence has an edge connecting them. Where each pair of adjacent nodes in the sequence has an edge connecting them, right? तो ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक बाइनरी ट्री है, राइट? लेट्स क्रिएट अ अच्छा सा बाइनरी ट्री. Yes, we have a binary tree now, right? So when we have a path in a binary tree, the sequence of nodes where each pair of adjacent nodes in the sequence has an edge connecting them. अगर मेरे पास ये बाइनरी ट्री है और मैंने कुछ वैल्यूज असाइन करता हूँ 2 3, let me take a screenshot from lead code maybe. Remove this one. So right, so अगर हमारे पास ये बाइनरी ट्री है तो इसमें पाथ क्या होगा? So path is the like multiple nodes जो adjacently connected है, right?
फॉर एग्जाम्पल दिस 9 minus 10 20, दिस कैन बी अ पाथ. और ये 15 20 minus 10, this can be a path, right? And this minus 10 27, this can be a path, right? So a node can only appear in the sequence at most once. तो ये बोल रहे हैं कि एक नोड एक सीक्वेंस में एक ही बार आ सकती है, राइट? मीन्स हम ऐसे नहीं कर सकते कि मैं कंसिडर कर लूं 9 minus 10 20 और फिर से minus 10 9, राइट? ये रॉन्ग हो जाएगा, राइट? 9 minus 10 20 तो एक पाथ है, बट 9 minus 10 20 और फिर से 20 से minus 10 पे चला जाऊं, minus 10 और फिर से 9 पे ही आ जाऊं, राइट? तो ये दोनों रॉन्ग हो गए, राइट? और इन दोनों को मैंने पहले कंसिडर कर लिया, तो मैं एक नोड को एक पाथ के अंदर दोबारा कंसिडर नहीं कर सकता, राइट? तो पाथ अब मुझे पता है कि व्हाट इज पाथ. द पाथ सम ऑफ द पाथ इज द सम ऑफ द नोड्स वैल्यूज इन द पाथ, राइट? तो ये कह रहे हैं कि पाथ सम क्या है कि जो भी करंट पाथ है, करंट पाथ में जितनी भी नोड्स लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला पाथ कंसीडर किया था 9 10 एंड 20, 9 10 and 20, right? So इस पाथ में I have three nodes minus 10 20 and 9. तो इसका पाथ सम क्या होगा? इसका पाथ सम हो जाएगा 9 minus 10 minus 1 and minus 120 minus 19, right? Sorry, not minus 19, sorry, plus 19, 19, right? The path sum will be 19 for this path, 9 minus 10 and 20. Now we know the path sum. इसका path sum पता है. So given the root of a binary tree, return the maximum path sum of any non-empty path. Return the maximum path sum of any non-empty path. Right? तो हमें maximum path sum return करना है of any non-empty path. मतलब हम जीरो रिटर्न नहीं कर सकते कि एटलीस्ट हमें एक नोड तो कंसिडर करनी ही पड़ेगी, राइट? वी शुड कंसिडर एटलीस्ट वन नोड. तो अब तुम्हें थोड़ा खुद से एफर्ट डालना पड़ेगा, तुम्हें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, खुद से चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, राइट? तो जितना टाइम तुम्हें इनिशियली देना था वो टाइम मिला के तुम्हें अब देना पड़ेगा. सो जितना तुम्हारा मिस हुआ है उसको तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, और जो भी करंट टॉपिक चल रहा है उसका बेसिक्स पढ़ लो, राइट? सो दैट तुम करंट चीजों को बिल्कुल मिस ना करो, ठीक है? तो करंट टॉपिक्स पढ़ो एंड जो प्रीवियसली तुम्हारा मिस हुआ है उसका भी एक स्केड्यूल बना लो और उसे फॉलो करते चलो, राइट? क्योंकि चीजें यार जो तुम कर रहे हो वो लिमिटेड है, राइट? डीएस से स्टूडेंट्स डरते हैं, डीएस से, बट डीएस क्या है? डीएस से भी डिफाइंड है, राइट? कि मींस उसमें तुम्हारा एरेज होगा, लिंक लिस्ट होगा, स्टैक, क्यूज, ट्रीज, राइट? डीपी ग्राफ. तो टॉपिक्स ज्यादा है, बट ऐसा तो नहीं कि अनलिमिटेड है, कभी खत्म नहीं होगा. चीजें लिमिटेड है, तो तुम एक एंड से करना स्टार्ट करोगे तो चीजें खत्म हो जाती है, राइट? क्वेश्चन में क्या है? हमें मैक्सिमम पाथ सम निकालना है, राइट? मैक्सिमम पाथ सम निकालना है एंड इट इज अ वेरिएशन, राइट? तुम्हें लीड कोड पे इस क्वेश्चन के मल्टीपल वेरिएशंस मिलेंगे, राइट? एंड दिस इज द दिस इज द लाइक ऑन द लीड कोड इट इज मार्क्ड एज हार्ड, राइट? और हार्ड का टैग देख के काफी स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि भाई ये तो लीड कोड हार्ड प्रॉब्लम आ गया, हमसे तो होगा ही नहीं, राइट? बट ऐसा नहीं है, राइट? तुम्हें टॉपिक आता है. देखो, whenever you are solving a problem, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? टॉप क्वेश्चन का टैग जो भी है, राइट? अगर तुम्हें वो टॉपिक आता है तो तुमसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए, राइट? तुमने वो चीज पढ़ रखी है तो क्वेश्चन डूएबल फॉर यू, राइट? अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा तो यू विल सी दैट कि क्यों नहीं हो रहा क्वेश्चन. क्वेश्चन में लगे रहोगे जब तक ना, और अगर नहीं हो रहा तो यू कैन लुक फॉर सॉल्यूशन. अगर उसमें कोई नई चीज इंप्लीमेंट हुई है तो मीन्स यू नीड टू स्टडी मोर, राइट? तुम्हें और पढ़ने की जरूरत है. अगर उसमें कुछ न्यू इंप्लीमेंट हुआ है तो तुम्हें वो नहीं आता था, बट अगर तुम्हें चीज आती है, राइट, तो क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है? वो तुम्हारी नॉलेज के अंदर में ये क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, राइट? लाइक दिस इज द माइंडसेट यू हैव टू कीप व्हेन यू आर सॉल्विंग डीएसए प्रॉब्लम्स. So the question statement is you have to find maximum path sum of a binary tree, right? और maximum path sum क्या है कि अगर जहां भी मल्टीपल नोड्स कनेक्टेड है वो है एक ट्री का पाथ, राइट? और पाथ सम क्या है? फॉर एग्जांपल
अगर मैं इस पाथ को कंसिडर करूं -10, 20 एंड -15, तो इसका पाथ सम होगा -10 और 20, 10 प्लस 15, 25, राइट। तो ये हो गया इसका पाथ सम। अब ऐसे ही इस ट्री में मल्टीपल पाथ बने, बहुत सारे पाथ बन सकते हैं, राइट। -10, 25, 15, -10, 27, -10, -10, 9, 15, 27, 7, 20, 20, 15, मल्टीपल पाथ। तो वो जितने भी पाथ बन रहे हैं ना, जितने भी पाथ बन रहे हैं, तो उनमें से मुझे मैक्सिमम पाथ फाइंड करना, राइट। I have to find, I can write it कि I have to find maximum path sum, max path sum among all the paths, among all the paths, right? तो can someone tell me इसमें maximum path sum क्या होगा? Current is it is visible to you, right? So in this maximum path sum is 42, right? We have the answer as well. So maximum path sum होगा 42, और 42 कैसे कि मैं जितने भी path consider करूं उनमें से maximum path sum ये वाला रहेगा 15, 20 और 7, which gives me 20 plus 15, 35, 35 plus 7 हो गया 42, right? तो maximum path sum हो गया 42, right? तो maximum path sum will be 42, right? And let me draw a tree for you and let you guys answer the maximum path sum for that problem. Yes, can you tell me कि इसका maximum path sum क्या होगा? इसमें maximum path sum क्या होगा? सबसे पहले मेरा 5 है, right? Firstly, I'm on 5. मैं 5 पे खड़ा हूँ, राइट। तो 5 से मेरे पास ऑप्शन है कि मैं -10 पे जाऊं या मैं -3 पे जाऊं, राइट। तो मुझे सारे पाथ एक्सप्लोर करके देखने हैं, तो एक बार -10 पे जाके देख लेते हैं और एक बार -3 पे जाके देख लेते हैं। तो जब मैं -10 पे जाता हूँ, नाउ आई एम ऑन -10, तो -10 से अगर मैं -2 पे गया तो मेरे पास आंसर आएगा -12, और -10 से अगर मैं 4 पे गया, -10 से अगर मैं 4 पे गया तो टोटल सम क्या बन जाएगा? -10 प्लस 4 -6, राइट। तो 5 से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जाता हूँ, 5 से अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड जाता हूँ तो मुझे मैक्सिमम सम क्या मिलेगा? -6। राइट हैंड साइड जाता हूँ तो ये हो गया -3, राइट। सो आई एम -3। अब -3 से ही मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, -3 से ही मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं लेफ्ट में जाऊं या तो मैं राइट में जाऊं। दोनों ही जगह जाके चेक कर लेते एक बार मैं लेफ्ट में जाके चेक कर लूंगा कि भाई मैक्सिमम सम क्या आ रहा है, और एक बार मैं राइट में जाके चेक कर लूंगा कि मैक्सिमम सम क्या आ रहा है। तो पहले हम लेफ्ट में गए, तो लेफ्ट में जाके मैक्सिमम सम क्या आ रहा है? 3 का मैक्सिमम सम आया 3 + 1 4, एंड 3 + 2 5, ठीक है। तो नाउ which one should I consider? Which one should I consider? Right? So या तो मैं तो एक तरफ से आ रहा है 4, एक तरफ से आ रहा है 5, right? और आई कैन से दैट 4 और 5 ना लेते हुए अब मैं -3 पे गया तो 3 है, तो 3 के पास भी दो ऑप्शन है 1 और 2 का। एक साइड है 1, एक साइड है 2, राइट। तो 3 के पास 3 ऑप्शन होंगे, राइट। 3 के पास 3 ऑप्शन होंगे कि या तो वो 1 को ले ले, या तो वो सिर्फ 2 को ले ले,
या तो वो दोनों को ले ले, वो पाथ वहीं पे एग्जॉस्ट हो जाए, राइट, बस पाथ यहीं पे खत्म हो जाएगा। तो अगर मैं दोनों को ही ले लेता हूं तो मेरा पाथ फ्री और मेरा पाथ क्या बन जाएगा, 3 + 1 + 2 6। तो एक तो 6 बन रहा है और 6 को मैं स्टोर कर लेता हूँ अभी करेंटली, और फिर मैं 2 को कंसिडर करके 2 + 3 -3 को बता देता हूँ कि भाई यहां से आ रहा है मैक्सिमम 5, ठीक है, और -3 फिर यहाँ जाएगा, यहां से -3 चेक करेगा तो यहां से इसको मिल जाएगा कि यहां से मैक्सिमम आ रहा है 1, राइट, कि -4 के लेफ्ट में है 5 और राइट में है -1, तो ये कहेगा मैं 5 वाला कंसिडर करूंगा, बड़ा वाला मैं चाहूंगा। तो 5 को इसने लिया एंड 5 + -4 = 1, तो -3 को अपने राइट हैंड साइड पे मिला 1, राइट, और लेफ्ट हैंड साइड पे इसको मिला था 5। तो 5 और 1 में से कौन सा कंसिडर करेगा, जो बड़ा है, राइट। तो इसके पास भी 3 ऑप्शन है, इट ऑल्सो हैज 3 ऑप्शन, कि या तो ये 5 को कंसिडर करे और या तो ये 1 को कंसिडर करे या तो दोनों को कंसिडर करके पाथ को एंड करे। अगर इसने दोनों को कंसिडर किया तो पाथ मेरा बन जाएगा 5 + 1 - 3, राइट, कि पाथ ये वाला हो जाएगा कि 2 3 -3 -4 5, राइट। अगर मैं इस पाथ को कंसिडर करता हूं तो मेरा टोटल सम आ जाएगा 2 + 1 3। तो अब इसने क्या किया, एक बार दोनों को कंसिडर करके ट्राई कर लिया एंड नाउ इट इज गोइंग टू सिलेक्ट 5, राइट। तो इसने 5 को सिलेक्ट किया, तो 5 को सिलेक्ट करने पे आंसर क्या बन गया, 2, राइट, बिकॉज 5 को इसने सिलेक्ट किया और एक खुद में -3 था, तो 5 - 3 बन गया 2। तो अब इस 5 को लेफ्ट हैंड साइड से मिला 2, राइट, लेफ्ट हैंड साइड से मिला 2, और इसको राइट हैंड साइड से मिला, क्या मिला इसको राइट हैंड साइड से, -6, राइट। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड से मिला 2 एंड राइट हैंड साइड से मिला -6, राइट। तो इसने कहा कि मैं -6 कंसीडर करूं या 2 कंसीडर करूं, आई विल कंसीडर 2। तो मेरा मैक्सिमम पाथ सम बन गया 5 + 2 7, 5 + 2 7, राइट। और ये 2 कहां से आ रहा है, 2 इज द पाथ ऑफ 5 to -3, राइट। और -3 ने किसको सेलेक्ट किया था, 3 and 2। इसका सम आया, इसका सम बना 7, और 7 हो गया मैक्सिमम पाथ सम। लाइक विच मेथड, डायमीटर ऑफ ट्री नॉट कंप्लीटली करेक्ट, बट कौन से मेथड का यूज करेंगे, राइट। हमें क्या करना है, मैं क्या करूंगा, मैं सारे पाथ को एक्सप्लोर करूं, I will explore all paths, राइट। मैं कह रहा हूं कि मैं सभी पाथ्स को एक्सप्लोर करूंगा, I will explore all paths। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जहाँ पे हमें सब कुछ एक्सप्लोर करना हो, तब हम किस कंसेप्ट का यूज कर पाए, कि मुझे सारी चीजों को ट्राई करना है और उसमें से जो भी बेस्ट ऑप्शन है उसको मुझे सिलेक्ट करना है। तो ऐसे केस में हम क्या चीज कंसिडर करते हैं, यस। I'm not getting enough response. So, okay, I don't think you guys know. I've gotten only one response. अगर पता है तो बता दो यार, कि जब हमें सब कुछ एक्सप्लोर करना हो, राइट, जब भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन है ना जहां पे तुम्हें सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना हो, राइट, कि मतलब जितनी भी गिवन चीजें हैं तुम्हें सबको ही एक्सप्लोर करना। अगर कभी ऐसी चॉइस आ जाए कि तुम्हें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं तुम्हें सबको ही गो थ्रू करना पड़ेगा, इन दैट केस वी ऑलवेज यूज रिकर्जन। हम हमेशा रिकर्जन का यूज करते हैं, राइट। बाइनरी ट्री है, बाइनरी ट्री को सॉल्व करने के लिए हम रिकर्जन का यूज करते हैं, वो चीज एक डिफरेंट है, राइट। तो बिकॉज बाइनरी ट्री में लाइक पेरेंट पे जाना इज नॉट इजी, राइट, विदाउट रिकर्जन। रिकर्सिवली हम बैक ट्रैक करते हुए ही
करंट चाइल्ड के पेरेंट पे जा सकते हैं। तो इसलिए हम बाइनरी ट्री में भी रिकर्जन का यूज करते हैं, बट जब भी तुम्हें लाइक इट इज फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स, वेदर मैटर नहीं करता कि तुम एरे सॉल्व कर रहे हो, लिंक लिस्ट सॉल्व कर रहे हो, स्टैक और क्यू सॉल्व कर रहे हो, राइट। अगर तुम्हें सारे ऑप्शंस को स्टोर करना पड़ रहा है ना, तो तुम्हें रिकर्जन का ही यूज करना पड़ेगा, राइट। तो सोच लो कि तुम्हें रिकर्जन यूज करना पड़ेगा, राइट। और वो बात अलग है कि रिकर्जन से क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो उसमें तुम्हें डीपी लगानी पड़ सकती है, बट डोंट नीड टू गो इन दैट मच डेप्थ, राइट। जस्ट इट वाज जस्ट एडवाइस कि इस चीज को ध्यान रखना, बिकॉज ये काफी क्वेश्चन में हेल्पफुल जाती है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू So what I'm going to do, let me create a tree again. Right, and इसको मैं सेट करता 5 -3 -2 1 3। सो हमारे पास ये ट्री है, राइट। हमारे पास ये गिवन ट्री है। सो इसका अगर मैं मैक्सिमम पाथ सम निकालूंगा, इसका मैक्सिमम पाथ सम, टू गाइस कैन आंसर, तुम लोग मुझे आंसर करो, राइट। और तब तक मैं बताता हूँ कि हाउ टू अप्रोच दिस प्रॉब्लम, राइट। सो मैंने क्या कहा था अभी तक कि हमें सारे ही पॉसिबल पाथ्स को विजिट करना, राइट। सारे ही पॉसिबल पाथ्स को विजिट करना है। और इस अबव एग्जांपल में just a minute, इस अबव एग्जांपल में हमने वन बाय वन हर एक नोड पे जाके देखा, वन बाय वन हम लेफ्ट चाइल्ड पे गए, राइट चाइल्ड पे गए, और लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड पे जाके हमने चेक किया कि क्या लेफ्ट चाइल्ड पे हायर आउटकम आ रहा है या राइट चाइल्ड पे हायर आउटकम आ रहा है, राइट। हमने जाके चेक किया कि क्या लेफ्ट चाइल्ड पे हायर आउटकम आ रहा है और या सॉरी क्या लेफ्ट चाइल्ड पे हायर आउटकम आ रहा है या राइट चाइल्ड पे हायर आउटकम आ रहा है। तो व्हाट आई से so I'll start with root। तो रूट में अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं राइट में जाऊं या तो मैं लेफ्ट में जाऊं, राइट। either I can go to left, either I can go to right। तो what I'll do, मैं दोनों ही जगह जाऊंगा। I'll go to left as well as right, ठीक है। I'll go to left as well as right। और जैसे ही मैं लेफ्ट और राइट में जा रहा हूं तो मैं ना दो वेरिएबल्स क्रिएट करूंगा, राइट। साइड बाय साइड सूडो कोड में लिखते रहते हैं, तो मैं दो वेरिएबल्स क्रिएट कर लूंगा। तो आई कैन से दैट मैं एक वेरिएबल बना लूंगा इंट एलसम, फिर दूसरा वेरिएबल बना लूंगा इंट आरसम, राइट। तो एलसम मुझे देगा कि भाई लेफ्ट से मैक्सिमम सम कितना आ रहा है, और आरसम मुझे देगा कि राइट से मैक्सिमम सम कितना आ रहा है, ठीक है। तो एलसम में बट यहाँ पे एक और चीज ये है कि जब भी मैं एलसम या आरसम कंसिडर कर रहा हूं, जब भी मैं एलसम या आरसम कंसिडर कर रहा हूं तो उनका आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, उनका आंसर नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज इसका आंसर आता है -10, राइट। सपोज इसका आंसर आता है -10 और इसका आंसर आता है -20,
तो मैं उस केस में दोनों में से किसी को भी कंसिडर नहीं करूंगा, राइट। मैं उस केस में दोनों में से किसी को भी कंसिडर नहीं करूंगा। तो व्हाट आई कैन से, कि या तो मुझे मैक्सिमम सम दे दो आउट ऑफ 0, या तो तुम 0 ले लो, और या तो तुम रूट के राइट पे कॉल लगाओ। राइट नहीं, हियर वी हैव द लेफ्ट सम, हियर वी हैव द लेफ्ट सम, तो आई कैन से दैट कि तुम रूट के, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लूंगा, आई कैन से दैट सॉल्व ऑफ रूट के राइट, not right, here we are taking left, so I'll solve root का left, right। so मुझे लेफ्ट सम, अब मेरा क्या होगा कि रूट के लेफ्ट पे कॉल लग जाएगी, so मतलब 5 के लेफ्ट पे कॉल लग जाएगी, तो अब मेरा 3 एज अ रूट कंसिडर होगा। जैसे ही मेरी लेफ्ट पे कॉल लगेगी, तो जो लेफ्ट सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री की टॉप नोड एज अ रूट कंसिडर होगी, तो मेरा 3 विल बी द न्यू रूट, right। So not 3, -3 will be the new root, right? It is -3, so -3 will be the new root। अब -3 में भी मैं लेफ्ट और राइट दोनों को चेक करूंगा, लेफ्ट एंड राइट दोनों को चेक करूंगा। so जैसे ही मैं लेफ्ट को चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले मैं लेफ्ट को चेक करता हूँ, तो आई हैव -2 हियर। यहाँ भी मेरे पास दो ऑप्शंस है कि मैं लेफ्ट को कंसिडर करूँ या राइट को कंसिडर करूँ, राइट। तो अब यहाँ पे मुझे पता है कि मेरा लेफ्ट से आ रहा है 1, कि मेरा लेफ्ट से आ रहा है 1 और राइट से आ रहा है 3, राइट, और राइट से आ रहा है 3, ठीक है। लेफ्ट से आया 1 और राइट से आ रहा है 3, तो मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस बनते हैं, राइट। 3 ऑप्शंस हमने ऊपर भी डिस्कस किए थे। 3 ऑप्शंस क्या है वो 3 ऑप्शंस? या तो मैं लेफ्ट और राइट में से किसी एक को कंसिडर करूं, या तो मैं लेफ्ट को कंसिडर करूं, या तो मैं राइट को कंसिडर करूं, और या तो मैं तीनों को ही कंसिडर करूं, या तो मैं तीनों को ही कंसिडर करूं, राइट। तो आई कैन से दैट कि अगर मुझे तीनों को कंसिडर करना है, तो मैं पहले तीनों को कंसिडर कर लेता हूं। तो आई कैन से दैट कि मैं एक सम बना लूंगा, और सम में मैं अपना मैक्सिमम सम स्टोर करके रखूंगा, ठीक है। सम के अंदर मैं अपना मैक्सिमम सम स्टोर करके रखूंगा, मींस सम में मेरा फाइनल आंसर रहेगा। सम विल बी हैविंग फाइनल आंसर, राइट। एंड और एक और पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे ये है कि अगर मान लो ये नोड 100 होती, राइट, तो इसका मैक्सिमम पाथ सम क्या आता है? अगर लास्ट नोड की वैल्यू 100 होती, नॉट 100, वेट अ मिनट, ये नोड 100 होती और बाकी सब नोड्स नेगेटिव होती, राइट। ये नोड 100 होती और बाकी सब नोड्स नेगेटिव होती, ऑल अदर नोड्स वुड हैव बीन नेगेटिव, तो इसका मैक्सिमम पाथ सम क्या आता? कैन समवन टेल मी? अगर लास्ट नोड 100 होती एंड बाकी सभी नोड्स नेगेटिव होती, तो मैक्सिमम पाथ सम क्या आता? नहीं, मैं कह रहा हूं सभी नोड्स अगर नेगेटिव होती, मींस इट वुड हैव बीन माइनस, क्या ऐसा कुछ टेस्ट केस मेरे पास होता, राइट। तो अगर मैं किसी भी नोड को कंसीडर करूं, राइट, अगर मैं किसी भी नोड को कंसीडर करता, तो मेरे पास सम हमेशा छोटा हो जाता, राइट। मींस 100 के अलावा मैं अगर किसी भी नोड को कंसीडर करता, तो मेरा सम छोटा हो जाता, राइट। तो मैं सिर्फ 100 को कंसीडर करता, और 100 को कंसीडर करने के बाद मेरा आंसर आता 100, राइट। तो अगर एक नोड ही पॉजिटिव है और बाकी सब नोड्स नेगेटिव है, तो वही नोड मेरा आंसर होगा, राइट। मींस आई कैन से दैट अगर सिर्फ एक ही नोड पॉजिटिव है, राइट,
सपोज इसमें ये 100 पॉजिटिव है या फिर इसमें सिर्फ ये 5 पॉजिटिव होता, तो अगर कोई भी अगर सिंगल नोड पॉजिटिव है ना, तो वही नोड मेरा आंसर है एज इट इज। ठीक है, तो इस चीज को भी मुझे कंसिडर करना है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन ऐड कर दूंगा कि जब मैं लेफ्ट और राइट पे जाके चेक करूंगा, कि जब मैं लेफ्ट और राइट पे जाके चेक करूँ, राइट, इसमें मैं लेफ्ट और राइट पे गया, अब मैं 100 के भी लेफ्ट और राइट पे जाके चेक करूंगा, और इसको मैं ओरिजिनल ही कर देता हूँ। ओरिजिनली हमारे पास क्या था यहाँ पे, डू समवन रिमेंबर, और इट इज अ रैंडम टेस्ट केस दैट आई हैव जस्ट क्रिएटेड। कुछ भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं, राइट, और 1 था, राइट, लेफ्ट इज इक्वल टू 1, तो लेट इट बी 1। तो जब मैं -2 के लेफ्ट पे जाऊंगा ना, तो मैं इसके भी लेफ्ट और राइट पे जाके चेक करूंगा, तो मैं इसके भी लेफ्ट और राइट पे जाके चेक करूँ, बट इसका लेफ्ट है नल, इसका लेफ्ट है नल, और इसका राइट भी है नल। तो लेफ्ट और राइट पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, आई हैव नथिंग ऑन लेफ्ट एंड नथिंग ऑन राइट। तो मैं कह सकता हूं कि जब भी अगर मेरी नोड नल हो जाए ना, कि जब भी मेरी नोड अगर नल हो जाए, तो इसमें मैं एक और लाइन ऐड करूंगा कि इफ रूट इक्वल्स टू नल, कि अगर मेरी रूट नल हो जाती है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, मैं कह दूंगा रिटर्न 0, कि 0 रिटर्न करूंगा, बिकॉज अगर नल है तो वहां पे कुछ भी नहीं है, तो नेक्स्ट सम क्या रहेगा, सम विल बी 0, राइट। तो अब मेरी कॉल लगी, 1 पे कॉल लगी, लेफ्ट और राइट कॉल, तो मेरा सम आया 1, राइट, और 3 पे कॉल लगी लेफ्ट और राइट की, तो सम आया 3। अब 1 और 3 यहाँ पे है, तो मेरा सम में क्या होगा, सम में मेरा स्टोर हो जाएगा, सम में आई एम स्टोरिंग फाइनल आंसर, और फाइनल आंसर मेरा क्या है, मैक्सिमम सम, राइट। और हो सकता है सम की प्रीवियस भी कोई वैल्यू हो, राइट, तो सम में बार बार अपडेट करूंगा, तो हो सकता है सम की कोई प्रीवियस वैल्यू भी हो, तो सम में मैं स्टोर करूंगा मैक्सिमम ऑफ करेंट सम, कॉमा रूट की वैल्यू, मींस लाइक हियर द रूट इज माइनस, राइट, -2 यहाँ पे मेरा रूट, राइट, -2 यहाँ पे मेरा रूट की वैल्यू प्लस एल सम प्लस आर सम। ठीक है, इन दिनों मैं यहाँ पे स्टोर करूंगा, राइट, एल सम प्लस आर सम। एंड अब मैंने किया कि क्या करेंटली सम की वैल्यू 3 पे जाके सम की वैल्यू 3 हो गई, सम जैसे 3 पे गए, जैसे ही हम 3 पे जाएंगे तो ये सम की वैल्यू 3 स्टोर कर लेगा, एंड जब हम -2 पे आएंगे तो क्या करेगा, क्या 1 3 4 4 -2 2, लाइक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं, थोड़ी हैवी रहेगी, राइट। एलसम एंड आरसम, सो एलसम एंड आरसम है मेरा कि लेफ्ट से जो सम आएगा, कि लेफ्ट का मैक्सिमम सम और राइट का मैक्सिमम सम, राइट, और लेफ्ट का मैक्सिमम सम और राइट का मैक्सिमम सम मैं कैसे निकालूंगा, जो मैं करंट फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ सॉल्व, उसकी हेल्प से, राइट। तो इसी फंक्शन की इसी फंक्शन को मैं रिकर्सिवली कॉल करूंगा टू गेट द एलसम और आरसम, राइट, और यहाँ पे मैं कह दूंगा सम इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ सम, कॉमा, जो यहाँ पे हमने ये वाली लाइन लिखी थी कि हम करेंट सम को भी कंसिडर कर सकते हैं, राइट, कि वी कैन कंसिडर करेंट सम एज वेल। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ,
ओके, ठीक है। और सम को आई कैन पास इनटू माय फंक्शन, राइट। तो ये है मेरा सॉल्व फंक्शन, ये है मेरा सॉल्व फंक्शन। और सॉल्व में मैं दो चीजें प्रोवाइड करूंगा। एक मैं प्रोवाइड करूंगा नोड, और आई कैन कॉल इट ट्री नोड, राइट। आई कैन कॉल इट ट्री नोड एस्ट्रिक रूट। और एक मैं प्रोवाइड कर दूंगा अपना करंट वेरिएबल सम, int and sum, right? I'll pass it by reference, and यहाँ भी मैं सम को पास कर देता, सम एंड सम, राइट। तो ये होगा इसका सॉल्यूशन, राइट। छोटा सा सॉल्यूशन होगा काफी इसका। तो एक बार इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं, राइट। फर्स्ट लेट्स इंप्लीमेंट दिस सॉल्यूशन एंड देन वी विल ट्राई रन, ठीक है। किसी को कोई कुछ पूछना है अभी तक, कुछ डाउट, एनीथिंग इन पर्टिकुलर दैट यू वांट टू आस्क? सर प्लीज, सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन प्लीज? इज इट फाइन विद यू? पहले इसको रन करते हैं, देन एक बार ट्राई रन करेंगे आफ्टर रनिंग। तो ट्राई रन विल मेक थिंग्स क्लियर, या फिर पहले ट्राई रन ही कर लेते हैं? एक काम करते हैं, पहले इसका ट्राई रन कर लेते हैं, ठीक है। तो आई कैन पेस्ट माय एग्जांपल here, not this one. So let's take this example, right? और इसके लिए अगर मैं मेन फंक्शन क्रिएट करूं, तो जो मेरा मेन फंक्शन रहेगा, राइट, तो जिसे मेरा लाइक मेन क्वेश्चन डिक्लेयर होगा, तो मेरा जो मेन फंक्शन रहेगा, राइट, यू कैन कॉल इट मेन फंक्शन। एक नेम से इंट मेन और कुछ भी लाइक इंट आई हैव की फंक्शन का नाम होगा कुछ मैक्स पाथ सम। उस फंक्शन में मुझे एक नोड गिवन होगी, राइट। उस फंक्शन में मुझे एक नोड गिवन होगी, ट्री नोड एस्ट्रिक रूट। और उस नोड में जो मुझे नोड गिवन है, जो मुझे रूट की वैल्यू गिवन है, उसमें मैं आई कैन से दैट, तो मैं इसमें सम पास करूंगा, राइट। तो आई नीड टू क्रिएट दैट सम, तो मैं एक सम क्रिएट कर लूंगा। आई कैन से दैट इंट सम इक्वल्स टू इंट min, राइट, मिनिमम से आई कैन स्टार्ट। और इंट min की जगह आई कैन ऑल्सो टेक इट एज जीरो, बट min भी ठीक है, बिकॉज हाँ वी हैव टू टेक अ नॉन एम्प्टी, राइट। मुझे एक नॉन एम्प्टी ट्री लेना है, तो आई कैन नॉट टेक जीरो, राइट। नॉन एम्प्टी ट्री मतलब कि एक नोड तो उसमें एटलीस्ट होनी ही चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं जीरो दूंगा तो आंसर गलत हो जाएगा। Now I'll call my solve function. I can call my solve function. Solve will pass my root and the sum that I have just created. और फिर मैं बाद में इस sum को रिटर्न कर दूंगा। Let me just copy it. Solve and I can say here return sum, right? So what we have here, एक बार इसको ट्राई रन करके देखते हैं इस कोड को। तो करेंटली हमारे पास सम है my sum is equals to int min, right, a very minimum value it is equal to, right. And guys, अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो you can keep posting your doubts in the Q&A section, right. मेरा Q&A section साइड में ओपन रहता है, right, so I keep on looking at our Q&A section as well, right. So currently हम स्टार्ट करेंगे रूट से, ठीक है। तो रूट की वैल्यू है -10, राइट। तो मेरे पास दो ऑप्शन हैं सिमिलरली, कि या तो मैं लेफ्ट में जाऊं या तो मैं राइट में जाऊं, ठीक है। या तो मैं लेफ्ट में जाऊं तो मैं राइट में जाऊं। तो मैं एक बार पहले लेफ्ट में जाऊंगा, राइट। तो मैं चेक करूंगा कि क्या रूट की वैल्यू नल है। नहीं, रूट की वैल्यू नल तो नहीं है, रूट की वैल्यू तो -10 है। रूट मेरा नल नहीं है, रूट है सम वैल्यू, राइट।
तो मैं आई गो टू लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट पे जाऊंगा, तो लेफ्ट पे आ गया। नाउ दिस इज माय करंट रूट, तो नाउ आई चेक अगेन, क्या रूट नल है? रूट इज नॉट नल, तो मैं इसके भी लेफ्ट पे जाऊंगा, इसके भी लेफ्ट पे गया, राइट, ये मैंने लेफ्ट कॉल लगाई, इसके भी लेफ्ट पे गया, तो इसके भी लेफ्ट पे आई चेक, क्या ये वैल्यू नल है? हाँ ये वैल्यू नल है, तो यहाँ से 0 रिटर्न हो जाएगा, राइट, बिकॉज जब भी नल है, इन द केस ऑफ नल वी आर रिटर्निंग 0, तो मतलब वहां से कोई पाथ नहीं बनेगा, राइट। तो नल है तो मैं 0 रिटर्न किया। सेम मैं इसके राइट पे चेक करूंगा, इसका राइट भी नल है, इसका राइट भी नल है, तो यहाँ से भी मैं 0 रिटर्न कर दूंगा, आई रिटर्न 0 इसको, यहाँ से मैंने 0 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 9 है, तो 9 से तो इसका सम में स्टोर होगा, सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, इसका मतलब 9 के लेफ्ट से कुछ आया, 9 के राइट से कुछ आया, तो 9 में सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, सम हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ इंट मिन कॉमा रूट की वैल्यू प्लस लेफ्ट सम प्लस राइट सम, मैक्सिमम ऑफ इंट मिन कॉमा मिन कॉमा 9 प्लस 0 प्लस 0, राइट। एल सम और आर सम की वैल्यू 0 आ गई। 0 कैसे आई? बिकॉज मेरा लेफ्ट भी नल था और राइट भी नल था, तो एल सम और आर सम की वैल्यू 0 आ गई, राइट। बिकॉज एल सम और आर सम में क्या था, रिकर्सिवली सेम फंक्शन कॉल हो रहा था, सेम सॉल्व फंक्शन कॉल हो रहा था, जो मेरा एक करंट फंक्शन है, राइट। सेम दिस करंट फंक्शन वाज बीइंग कॉल्ड, राइट। आई कैन राइट इट हियर, सॉल्व। तो सम में वैल्यू स्टोर होगी, सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी अब 9, ठीक है। तो सम में वैल्यू 9 स्टोर हो गई, और मेरा यहां से क्या रिटर्न होगा, इसके अभी तक क्या चल रहा था, -10 का लेफ्ट सम, राइट, -10 का लेफ्ट सम वी वर कैलकुलेटिंग, सो -10 के लेफ्ट सम से क्या रिटर्न होगा, इससे रिटर्न हो जाएगा रूट की वैल्यू प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट सम कॉमा राइट सम, ठीक है। तो रूट की वैल्यू क्या है, रूट की वैल्यू तो लेफ्ट सब ट्री के लिए रूट वैल्यू हो गई 9, ठीक है। 9 प्लस 0, 9 प्लस मैक्सिमम ऑफ 0 और 0, तो 0 और 0 का मैक्सिमम तो 0 ही होता है, तो 9 रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, तो इसके एलसम की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। और अभी मेरा सम में भी 9 स्टोर हो चुका है। अब हम जाते हैं राइट सम पे, ठीक है। तो राइट सम पे हम आ गए, तो यहाँ पे है मेरा 20, यहाँ पे है मेरा 20, तो 20 विल बी ट्रीटेड एज न्यू रूट, 20 will be treated as new root, or I can say new root and root, ठीक है। तो n रूट में अब इसके लिए भी एक एलसम कैलकुलेट होगा, राइट, तो अब मेरी रिकर्सिव कॉल लगी है फॉर द राइट सम, सॉल्व रूट के राइट पे गया, ठीक है। अब रूट का राइट एज अ रूट ट्रीट होगा, राइट। तो इसके लिए भी एलसम की वैल्यू निकलेगी, इसके लिए एलसम की वैल्यू निकली, तो अब मैं लेफ्ट कॉल लगी, तो मेरा 15 एज अ रूट ट्रीट होगा। 15 के लिए लेफ्ट नल है और राइट भी नल है, तो लेफ्ट से आया 0 और राइट से भी आया 0। लेट मी पिक अप द येलो वन, लेफ्ट से आया 0, साइज बड़ा हो गया, लेफ्ट से आया 0 और राइट से भी आया 0, राइट। तो दोनों साइड से 0 आने के बाद लेफ्ट से भी 0 आ गया, राइट से भी 0 आ गया, तो व्हाट विल हैपन, इट विल से कि लेफ्ट सम और राइट सम दोनों ही 0 है, तो सम में पहले चेक होगा कि क्या सम इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ करंट सम की वैल्यू क्या है, करंट सम की वैल्यू है 9, और ये हो जाएगा 15 प्लस 0 प्लस 0, तो सम की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 15, राइट, सम की वैल्यू 15 अपडेट हो जाएगी, और 20 कोई क्या फॉरवर्ड करेगा, 20 को फॉरवर्ड करेगा 15 प्लस मैक्सिमम ऑफ 0 और 0, राइट, लेफ्ट और राइट में से किसी एक को ही सिलेक्ट करेगा, राइट, बिकॉज हमने डिस्कस किया है कि क्योंकि अगर इसकी लेफ्ट और राइट की वैल्यू है, तो या तो वो ऐसे जाएगी और या तो वो ऐसे जाएगी, राइट, वो ऐसे नहीं जा सकती कि 1 2 3 4 इसके लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड कंसीडर हो जाए, तो वो चीज नहीं हो सकती, बिकॉज हम
एडजेसेंट नोड्स को ही कंसिडर करेंगे। पाथ हमारा सिंगुलरली चलता है, दो नोड्स, पाथ कभी भी स्प्लिट नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 20 था, here we had 20, तो 20 के एलसम की वैल्यू हो गई 15, 20 का एलसम हो गया, you can see that 20 का एलसम हो गया 15, राइट। अब 20 का आर सम कैलकुलेट होगा सिमिलरली, 20 का आर सम कैलकुलेट होगा, तो आर सम के लिए मैं 7 पे गया, आर सम के लिए मैं 7 पे गया, और 7 मेरा अब रूट की तरह ट्रीट होगा, 7 अब रूट की तरह ट्रीट होगा, तो 7 हमने चेक किया कि क्या 7 नल है, कि क्या करंट रूट नल है, नो इट इज नॉट नल, तो हम उसके लेफ्ट पे जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे तो हमें नल मिलेगा, लेफ्ट पे गए नल मिला, तो वहां से हम 0 रिटर्न कर देंगे कि भाई कुछ भी नहीं है, तो 0 रिटर्न कर दिया हमने। अब हम फिर से राइट पे गए, राइट पे भी हमें 0 मिल गया, तो राइट से भी हमने 0 रिटर्न कर दिया, राइट से भी हमने 0 कर दिया रिटर्न। नाउ व्हाट विल हैपन, नाउ सम के लिए चेक होगा कि क्या करंट कि जो करंट स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी वैल्यू सम से बड़ी है, तो सम इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ करंट, सम क्या है 15, राइट, मैक्स ऑफ 15 कॉमा 7 के लिए लेफ्ट वैल्यू क्या है, लेफ्ट वैल्यू इज 0, राइट वैल्यू क्या है, राइट वैल्यू इज 0, 7 प्लस 0 प्लस 0, 15 और 7 प्लस 0 प्लस 0 में से कौन बड़ा है, 15 और 7, 15 इज बिगर, तो सम वॉन्ट बी अपडेटेड, सम वैसा का वैसा रहेगा, सम अपडेट नहीं होगा, राइट। तो 20 के लिए आर सम मेरा आ जाएगा, आर सम क्या आएगा, आर सम आएगा 7 प्लस मैक्सिमम ऑफ 0,0, बिकॉज लेफ्ट और राइट में से हम एक को ही कंसिडर करेंगे, राइट। तो मैक्स ऑफ 0,0 विल बी 0, तो यहां से आ गया 7, राइट, और यहां से क्या आया था, लेफ्ट सम से आया था 15, ठीक है। तो अब मेरे पास लेफ्ट सम की भी वैल्यू आ गई 20 के लिए, और राइट सम की भी वैल्यू आ गई, तो अब लेफ्ट सम मेरे पास आ गया, राइट सम मेरे पास आ गया, तो मैं करंट सम चेक करूंगा कि जो करंट सम बन रहा है, ये जो करंट सम बन रहा है, क्या उसकी वैल्यू मेरे सम से बड़ी है, तो करंट सम की वैल्यू क्या होगी, लेट मी डिलीट दिस, just a minute, so I can write blue again, or let me write white, current sum की वैल्यू क्या होगी, is sum equals to maximum of, is sum equals to maximum of, sum की करंट वैल्यू क्या है 15 कॉमा रूट की वैल्यू क्या है, नाउ माय रूट इज 20, और रूट के लेफ्ट की वैल्यू क्या है, एलसम की वैल्यू क्या है, नाउ द वैल्यू ऑफ एलसम इज, एलसम की वैल्यू आई है 15, राइट, एलसम की वैल्यू 15 आई थी, राइट, सो 20 प्लस 15, और राइट सम की वैल्यू आई थी 7, 20 प्लस 15 प्लस 7, ये आएगा 42, राइट। तो सम में मेरा स्टोर हो जाएगा, कौन सा बड़ा है 15 या 42, 42 इज बिगर, तो सम में मेरा 42 स्टोर हो जाएगा, तो इट विल बिकम 42, राइट। तो ठीक है, तो सम में मेरा 42 स्टोर हो गया, ठीक है। नाउ अब ये ऊपर भी कॉल देगा, इट विल स्टिल गो अबव, राइट, बिकॉज अभी मेरी कॉल्स खत्म नहीं हुई, कॉल्स तब खत्म होगी जब दोबारा कॉल रूट पे पहुंच जाएगी, जब रूट के लेफ्ट और राइट सम कैलकुलेट हो जाएगा। रूट के लिए मेरा एल सम तो आ गया था 9, एल सम वाज, लेफ्ट सम रूट के लिए 9 आया था, और यहां से मेरा राइट सम क्या आएगा, राइट सम आएगा 20 प्लस, कैन यू गाइस टेल मी कि -10 के लिए राइट सम क्या आएगा, -10 के लिए राइट सम की वैल्यू क्या होगी, यस, I'm looking at the Q&A section. Guys, do tell me. I'm waiting for your responses. कि 20 से इसको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, कि आर सम इसका क्या जाएगा, -10 का आर सम क्या होगा। Yes guys, I'm waiting for a response. मुझे अभी तक कुछ रिस्पॉन्सेज मिले हैं and they are incorrect, right?
This class 27. No, I got a different response, but it is still incorrect. Okay. I got a correct response. So अगेन मैं फिर से बताऊंगा, ठीक है, कि आर सम मैंने यहाँ पे निकाला था, मैंने यहाँ पे राइट सम निकाला था, तो राइट सम की मुझे वैल्यू चाहिए। तो जब भी मैं रिटर्न करूंगा कुछ, जब भी मैं रिटर्न करूंगा, तो मेरा एक लेफ्ट सम है और एक राइट सम है, तो दोनों में से किसी एक को ही ऐड करूंगा, राइट, बिकॉज मैं वो ऐड करके अबव नोड को प्रोवाइड करूँ, राइट, द नोड अबव मी, मैं उसे प्रोवाइड कर रहा हूँ वो चीज। तो अगर मैं ऊपर वाली नोड को प्रोवाइड करूंगा तो मैं दोनों में से किसी एक को ही कंसीडर कर सकता हूँ, राइट, या तो मैं एल सम कंसीडर करूंगा तो मैं आर सम कंसीडर करूंगा, मींस या तो मेरा पाथ ऐसे जाएगा और या तो मेरा पाथ ऐसे जाएगा। पाथ ऐसे ऐसे नहीं जा सकता, राइट, पाथ स्प्लिट नहीं हो सकता, फिर से बता रहा हूँ। तो एल सम था मेरा 15, आर सम था 7, तो इसमें से जाएगा 20 प्लस मैक्सिमम ऑफ 15,7, राइट। 20 तो मेरा जाएगा ही 10 के साथ, -10 के साथ 20 तो जाएगा ही, और 15 और 7 की एल सम और आर सम में से जो बड़ा है ना मैं उसे उठा लूंगा, जो बड़ा है मैं उसे उठा लूंगा, तो मैं 15 को पिकअप कर लूंगा, तो आई से दैट 20 प्लस 15 जाएगा ऊपर, विच इज 35। अब 35 यहाँ जाएगा तो इसका एल सम आ गया 9 और इसका आर सम आ गया माइनस, इसका आर सम आ गया 35, तो सम मेरा चेक होगा कि सम इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ, करंट सम था 42, 42 35 प्लस 9 माइनस 10, तो ये क्या बनता है, इट विल बी 34, इट विल बी 34। तो क्या 34 42 से बड़ा है, नहीं, सम की वैल्यू एज इट इज रहेगी, राइट, और व्हाट इट विल रिटर्न, it will return like -10 plus 20 15 -10 plus 35, so ये रिटर्न करेगा -10 plus 35 25 रिटर्न कर देगा, राइट। तो ये कुछ भी रिटर्न करे, वी डू नॉट नीड दैट, बिकॉज अब मेरा फाइनल सम, अब मेरी सारी कॉल्स कंप्लीट हो चुकी है, और फाइनल सम में क्या स्टोर था, सॉल्व फंक्शन जो हमने कॉल किया था ये कंप्लीट हो चुका है, और फाइनल सम में क्या स्टोर था, फाइनल सम में मैंने स्टोर किया था, फाइनल सम में आई हैव स्टोर 42, तो आंसर आ जाएगा 42, राइट। सो दैट्स हाउ इट इज वर्किंग, राइट। तो गाइस सबको लाइक ड्राई रन समझ में आया एंड अप्रोच एज वेल, write a yes in the chat box if it is clear to you. Yes class, I'm waiting for everyone's response. किसी को कोई डाउट, कुछ भी पूछना हो, I'm still here for you. और जल्दी से इसको सबमिट करके देख ले लीड कोड पे, स्क्रॉल डाउन प्लीज, जल्दी से इसको लीड कोड पे सबमिट कर लेते, छोटा सा कोड है, राइट, कंप्लीट कोड इतना ही रहेगा, जो हमने कोड लिखा है इसको एज इट इज सबमिट करके देखते हैं, एक भी वर्ड चेंज नहीं करेंगे इसमें, राइट। दिस वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अप्रोच, यस, बिकॉज देखो रवि सेइंग कि उसे अप्रोच तो समझ आ गई, बट खुद से समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, राइट। तो एक इनिशियली आई वुड से कि तुम्हारे लिए कंसेप्ट्स नए हैं, राइट, कंसेप्ट्स अगर किसी के लिए नए भी नहीं है तो तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, एंड आई कैन से दैट इट इज वन ऑफ द हार्ड प्रॉब्लम, तो इसकी तुम्हें इतनी जल्दी चीजें नहीं बनती है, तुम्हें पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग को टाइम देना पड़ेगा, डीएसए जो है बहुत टाइम मांगता है, राइट। लास्ट स्टेप समझाइए आफ्टर 20 प्लस 15, तो लास्ट स्टेप आफ्टर 20 प्लस 15, तो आर सम में मेरा 35 जाएगा यहाँ से, ठीक है, आर सम मेरा 35 जाएगा यहाँ से और यहाँ से
लेफ्ट सम जाएगा 9। तो यहाँ पे मेरा क्या था, यहाँ पे था मेरा रिटर्न रूट वेल प्लस मैक्सिमम ऑफ आर सम एल सम कॉमा आर सम। तो ये 9 और 20, राइट। 9 और 20 का मैक्सिमम क्या होगा 20। तो 20 माइनस 10 ये वाला फंक्शन बाय डिफॉल्ट रिटर्न करेगा, राइट। बट उसकी हमें नीड नहीं है, वी डोंट नीड दैट, राइट। उससे हमें मैटर नहीं करता, बिकॉज मेरा मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन है ऊपर वाला, दिस इज माई मेन फंक्शन। और उसमें हम क्या रिटर्न करें, उसमें हम रिटर्न कर रहे हैं सम, और सम को मैंने पास बाय रेफरेंस किया था, राइट। पास बाय रेफरेंस का मतलब इस सम में जो भी चेंजेस हुए होंगे ना, किस मेरे सम वेरिएबल में जो भी चेंजेस हुए होंगे वो सब चेंजेस इसमें भी होंगे, इसमें भी होंगे, राइट। तो सम में जो भी चेंजेस हुए मतलब सम की वैल्यू इंट मीन से अपडेट होगी 42 बन गई, और मैंने रिटर्न सम किया तो मेरा 42 एज आंसर आ जाए, राइट। ठीक है। अभी वाज आस्किंग टू एक्सप्लेन दिस लास्ट स्टेप, आई गेस दिस इज व्हाट यू वर आस्किंग फॉर अभी। ओके, गुड नाउ। Okay guys, so let's end it, right? Let's end today's class here only. If you guys want to take a pic of the solution, let me remove unnecessary markings. Sorry, यहाँ से return 0 remove हो गया। फिर return. So, right, this will be the final solution. So thank you class, thank you for joining everyone.